हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th एग्रीकल्चर चैप्टर जो 4 है हमारा, उसका सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सम मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड बाय गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द condition of farmers and agriculture as well, and interdependency of all three sectors, primary, secondary and tertiary. And also we will cover the contribution of agriculture in Indian economy and employment. So let's start the video. Very first we will see the major crops of India. We will divide the crops of India in two main parts. First one is food crops and second one is non-food crops. In food crops, is cereals, in which we see the coarse grains like wheat, millet, jowar, bajra and rice. Second classification is pulses. In this we see the pulses of India like tur dal, arher, moong dal, etc. Third one is fruits and vegetables, and we also know that the cultivation of fruits and vegetable is known as horticulture. This one is important. It makes an MCQ question for 1 marks. And last classification of food crops is beverage crops like tea and coffee. The further division also says that there are many types of food crops like plantation crops, essential food crops, etc. But we'll see only two major sections, food crops and non-food crops. Second, non-food crops, we'll see two further divisions. One is fiber crop. Fiber crop are in India, mainly two fiber crops are in India. First one is jute and second one is cotton. Jute, the main production area is West Bengal, as we know, and the cotton is in Saurashtra, which is Maharashtra and Gujarat. The next classification of non-food crop is rubber. Rubber in Kerala. The production area is Kerala. After this, we will see the technical and institutional reforms made by government to improve agricultural conditions. It is very necessary to make some efficient programs for agriculture to lift the for the upliftment of agricultural conditions, because in India more than 50% population is totally dependent on agriculture for their livelihood. So we'll see this. Various initiatives are taken by central and state governments. As we know that agriculture is in state list. When we saw state list and central list and concurrent list, we saw that the agriculture is in state list. So but central government also makes some laws. So various initiatives are taken by central and state government to ensure the increase in agricultural production. Like first one is collectivism. कलेक्टिविज्म, लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी. कलेक्टिविज्म का मतलब होता है एकजुट करना. जब छोटे छोटे प्लॉट्स किसी किसान के बहुत ज़्यादा फैले होते हैं तो वो उस पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे किसानों को कहा जाता है कि वो एक साथ मिल के कल्टिवेशन करें. सेकंड इज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन इन हिंदी वी से चकबंदी. when there are several holdings of a small farmer distributed here and there, then consolidation makes them all to place at a single place and make small holdings a large holding so that the farmer can apply modern farming methods. एग्जाम्पल इसका हिंदी में समझ लेते हैं बहुत आसानी से. अगर सपोज किसी का बहुत छोटा प्लॉट है तो वो उस पर प्लाउइंग करने के लिए थ्रेसर या ट्रैक्टर लेकर नहीं जाता है, वो मैनुअली ही उसे प्लाउ कर लेता है. लेकिन अगर किसी का बड़ा चक होता है, बड़ा प्लॉट होता है, तो वो उस पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसे ट्रैक्टर, हैरो वगैरह अप्लाई कर सकता है. नेक्स्ट हम कह रहे हैं विलिंग टू फोर्सफुली कॉपरेशन एंड एबिलिटी ऑफ एबॉलिशन. एबॉलिशन, यहाँ पर एबॉलिशन होगा जमींदारी का. लोगों को फोर्सफुली या अपनी इच्छा से, दोनों ही तरह से आपस में कलेक्टिविज्म के लिए प्रमोट करना. एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी. जमींदारी कहा जाता है बेटा लैंडलॉर्ड्स में, जब बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है किसी एक व्यक्ति के पास और उसकी ज़मीन पर लैंडलेस लेबर जो है काम करते हैं, तो इस प्रथा को ख़त्म किया गया था. जिनके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ज़मीन थी वो ज़मीन लेकर जो ज़मीन पर खेती कर रहे थे उन्हीं को सरकार द्वारा दे दिया गया था. ये था एबॉलिशन ऑफ जमींदारी. तो ये सारी प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट द्वारा की गई हैं. इसके बाद वर गिवन प्रियोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के बाद संस्थागत तरीके से सुधार करने की कोशिश की गई है देश में. इसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं. फॉर एग्जांपल इन कानपुर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विद्यालय
and some other institutional reforms like I2PR, Indian Institute of Pulse Research is also there in Kanpur. तो ये सारे संस्थागत विकास किए जा रहे हैं जिसकी वजह से शोध और रिसर्च R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला है। और अब एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ मानसून के भरोसे या भगवान के भरोसे नहीं हो रही है, बल्कि साइंटिफिक और साइंस का भी प्रयोग उसमें किया जा रहा है। सेकंड इनिशिएटिव जो किया है गवर्नमेंट ने, लैंड रिफॉर्म्स वर द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1951 से 56 के बीच में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे उसमें, उनकी अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा या योजना आयोग द्वारा, उसमें लैंड रिफॉर्म्स जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म्स, ये दोनों ही हमारी मेन प्रियोरिटी पर थे। लैंड रिफॉर्म का मतलब बेटा वही है कि जो कंसोलिडेशन हो गया या एबॉलिशन ऑफ जमींदारी हो गया, ये सब उसमें मेन प्रियोरिटी पर थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 1960s, 10 साल बाद आज़ाद होने के लगभग 13 साल बाद 1960s में जब पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगी तो हमें ज़रूरत थी तेज़ी से अनाज का प्रोडक्शन भी बढ़ाने की, जिसके लिए हमने इनिशिएट किया ग्रीन रिवोल्यूशन का। ग्रीन रिवोल्यूशन खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। इसके बाद जब ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहले व्हीट में आया 1969 तक, जब ये सक्सेसफुल हो गया फिर राइस में आया, और उसके बाद कई रिवोल्यूशन लाए गए अलग अलग चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, एटसेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे कलर हैं एटसेट्रा, वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज। और ये एक तरह की गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी टू इनिशिएट टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर, कि किस तरह से भारतीय कृषि को ना सिर्फ साइंटिफिकली हम इम्प्रूव करें बल्कि बढ़ी हुई पॉपुलेशन की नीड्स को भी फुलफिल किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इनिशिएटिव लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो है MSP, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहते हैं। ये किसानों के लिए आता है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस को कहते हैं। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का एक निश्चित मूल्य सरकार के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी सरकार उन्हें पहले ही घोषणा कर देती है कि इस साल समर्थन मूल्य इस फसल का इतना रहेगा, जिससे किसान उस फसल को उत्पादन करने में झिझके ना और उनकी फसल जब तैयार हो तो वो आसानी से सरकार द्वारा खरीदी जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस आपको पता होगा बेटा, जितने भी कृषि के लिए इंश्योरेंस होते हैं वो लगभग 2 साल के लिए होते हैं, क्योंकि अगर एक साल फसल खराब हो गई तो हम कैसे वापस करेंगे। तो उसके लिए फार्मर्स को अगले साल का भी मौका दिया जाता है कि हम अगले साल फसल अच्छी हो तो हम पिछले साल का भी जो हमने लोन लिया था वो हम वापस दे सकें। तो ये तो एग्रीकल्चरल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए है। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद सब्सिडी, आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो एग्रीकल्चर पे ही मिलती है। अगर आपको KCC द सम ऑफ द रिफॉर्म्स KCC के बारे में पता हो तो सबसे सस्ता लोन इंडिया में जो मिलता है वो किसान क्रेडिट कार्ड पर ही मिलता है। लगभग 4% के आसपास इसका इंटरेस्ट होता है, जो कि एक साधारण खाते में लगने वाले ब्याज के लगभग बराबर है, या ब्याज के लगभग बराबर ही है। Reforms brought by the government. These were the some reforms to promote agricultural activity sustainably. Next one says establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR का establishment किया गया। इसके अलावा some universities हमने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल दिए 2। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग। अभी तक क्या था, जैसे किसानों को दवा वगैरह छिड़कनी है या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है तो उन्हें पता ही नहीं होता था कि कब बारिश हो कि ना हो, कि कैसे हम करें। तो ये सब चीज़ें उन्हें पहले से ही फोरकास्ट करके बताई जाएंगी कि अगले 2 दिन बारिश होने वाली है, तो वो उस हिसाब से क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को प्लान कर सकते हैं। और अब जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ मानसून के भरोसे ना होकर साइंस की मदद से वेल प्लान हो रही है। वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल और वेदर फोरकास्टिंग टेक्निकल रिफॉर्म्स हो रहे हैं इन सबको प्रायोरिटी दी गई है जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं भी हैं बेटा, वो हम लोग आगे देखेंगे, आपके सिलेबस में अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एग्रीकल्चर और उद्योग जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस कथन को परिभाषित करें। या फिर हम कह सकते हैं हाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आर को रिलेटेड या इंटर रिलेटेड। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन जितना बोर्ड में लिखना है उतना भी देखते हैं, इसके अलावा डिटेल एनालिसिस हम वीडियो में आगे करेंगे। पहला पॉइंट आपको लिखना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द रीजन फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है बेटा उनको जो कृषि से मिलने वाले उत्पादों को फर्दर प्रोसेस करके कुछ नया मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे शुगर मिल हो गई, गन्ना लेकर के वो चीनी बनाती है एंड बाई प्रोडक्ट्स और भी बनाती है। इसके अलावा जूट हो गया या बिस्किट्स हो गए, जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जैसे आशीर्वाद आटा ही हो गया एक्सेट्रा आर द रीजंस। इन उद्योगों की वजह से ही लोग अब ऐसी फसलों का उत्पादन ज़्यादा करते हैं जो इंडस्ट्री में आसानी से खप जाएं या आसानी से बेची जा सकें। यानी कि जहाँ जितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो गई है उतनी ज़्यादा सप्लाई दी जा रही है अब एग्रीकल्चरल सेक्टर के द्वारा। तो इस तरह से डिमांड इन सेकेंडरी सेक्टर प्रोवोक्स द प्रोडक्शन इन प्राइमरी सेक्टर। Second one says development of manufacturing industries has not only helped farmers in increased production but also made production process very efficient। अब हमें प्रोडक्शन एक निश्चित समय पर देना है और ज़्यादा देना है, जिसके लिए हम सिस्टमेटिक तरीके से पेस्टिसाइड्स या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स या फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा का इस्तेमाल करने लगे हैं। और अब जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है, यानी कि कुशलतापूर्वक किया जाने लगा है। पहले मैनुअली जो काम हो रहे थे वो अब मैकेनिकल प्रोसेस या मशीन्स के द्वारा किए जाने लगे हैं। Third one says today we are not only self-sufficient in agriculture but our farmers are also able to compete with other farmers in the world। आज के समय में जैसा हमने देखा जब 1950 में देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हार्डली कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से थ्रेसर ट्रैक्टर तो छोड़ो, हमारे पास मैनुअल मशीन्स भी नहीं थी जिनसे हम दवाई वगैरह छिड़क पाएँ या प्लाउइंग कर पाएँ। लेकिन धीरे धीरे जब प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हुई 1960 में जब हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया और तेज़ी से बूम हुआ प्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्टर के, तो उस सामान से फर्दर उस पर वैल्यू एडिशन प्रोसेस करके उससे हमें सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाने थे, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा। जब सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करने लगा तो सेकेंडरी सेक्टर ने देखा कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी नीड क्या है। तो हमने प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर उसी के लिए मशीनें बनाना शुरू किया। सपोज जैसे माइनिंग आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, माइनिंग से हमने कोल एंड स्टील एक्सट्रैक्ट किया और उसको फर्दर प्रोसेस करके मेटल इंडस्ट्री डेवलप की और फाइनली हमने उससे एक ट्रैक्टर बनाया। और ट्रैक्टर वापस प्राइमरी सेक्टर में जाकर क्या करेगा, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो इस तरह से जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स थे वो पहले हमें बाहर से मंगाने पड़ते थे, बाहर से हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम इंडिया में ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो खुद ही एग्रीकल्चर के लिए टूल्स एंड एप्लीकेशन बना रही हैं। यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, और ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं बल्कि हम वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनके बराबर अपने देश में खुद ही दे पा रहे हैं अपने किसानों को। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो किस तरह से देश को इकोनॉमी और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एट्सेट्रा में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, बहुत ही प्रिसाइज पॉइंट्स हैं। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग अभी आगे देखेंगे वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है जीडीपी हैज़ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। 1951 के बाद से जो एग्रीकल्चर का शेयर था जीडीपी में वो लगातार कम हुआ है। यानी कि जीडीपी जो है वो जितना पैसा हमें जीडीपी में मिल रहा था, जितना परसेंटेज हमें मिल रहा था जीडीपी का एग्रीकल्चर से, वो लगातार कम हुआ है 1951 से आज के टाइम में। ऐसा नहीं है, अब इस पॉइंट से ये मत कंफ्यूज होइएगा कि प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई है। प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हुई है। प्रोडक्शन बढ़ना और जीडीपी में शेयर बढ़ना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अभी हम लोग आगे ग्राफ की मदद से देखेंगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी एज हाई एज 63% इन द 2001। पॉपुलेशन जो है वो तो लगातार बढ़ ही रही है, ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में लगातार, उसी के रिस्पेक्ट में लगातार डिमांड भी बढ़ी रही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर एवरीवन। ये जो है इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है और ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है बल्कि वेरियस प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है सभी के लिए।
इसके बाद हम कुछ दो छोटी हेडिंग देख लेते हैं। पहला है फूड सिक्योरिटी। हम क्लास 9 में पूरा चैप्टर ही पढ़ कर आए हैं। इट अप्लाइज व्हेन ईच पर्सन इज एबल टू एक्वायर मील फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे। इसका मतलब है एक व्यक्ति को अगर 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो उससे हम फूड सिक्योर कहेंगे। फूड सिक्योरिटी का मतलब खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि अगर एक व्यक्ति को 2 वक्त का खाना मिल रहा है भरपेट उसकी ज़रूरत के अनुसार, तो उसे हम फूड सिक्योर कहेंगे और इसे ही फूड सिक्योरिटी कहते हैं और इसे ही अचीव करना है। इंडिया में आज के टाइम पर भी लगभग 25 से 30 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं, तो ये बहुत ख़राब है। महात्मा गांधी जी ने कहा था जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है तब तक देश पिछड़ा ही कहलाएगा। खैर, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं सेरीकल्चर, जो इस चैप्टर में आई है। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े को पालना या रेशम के कीड़े को पालना या रेशम के कीड़े की देखभाल करना कहलाता है रेशम के लिए सेरीकल्चर। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। अब हम लोग डिटेल एनालिसिस पे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कह रहा है शेयर इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इसका शेयर भले ही कम हो लेकिन कॉन्टिन्यूस बना हुआ है। जब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर गड़बड़ होते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन वगैरह आता है, उस टाइम पर भी एग्रीकल्चर जो है इसको संभाले रहता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर। हमने अभी आपको बताया मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, मतलब लगभग 78 से 80 करोड़ लोग जो हैं वो इस सेक्टर में लगे हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कंट्रीब्यूशन ऑन टू कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, दूसरों उसके फॉर्मेशन में भी मदद करता है हमारी कौन, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोवाइडिंग ऑफ फूड सरप्लस टू द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। फूड सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त अनाज। जो ज़रूरत से ज़्यादा अनाज किसान पैदा करता है, ऑब्वियस सी बात है वो बेचने के लिए ही होता है या उसे वो बेच देता है। तो नॉर्थ इंडिया जो है उसे पूरे इंडिया का किचन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जितना फूड सरप्लस होता है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्दर्न एमपी से, वो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री की पॉपुलेशन के लिए काम आता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। हमने अभी आपको बताया माइनिंग किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो यहाँ से जो हम मटेरियल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मटेरियल इंडस्ट्री के लिए काम आता है। जैसे हमने देखा है झारखंड में झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन 1911 में लगाई थी जमशेद जी ने। किस लिए लगाई थी? क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, सुवर्णरेखा और खरकई नदियों के पास में। 2 नदियाँ हैं झारखंड में, याद रखिएगा, ये क्लास 8 में आता है बाय द वे एनसीईआरटी की। सुवर्णरेखा और खरकई, ये 2 नदियों के पास जो हमारा सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल पाया जा रहा था इंडिया में, मिनरल हार्ट था हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पर इंडस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर को मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट सेकेंडरी सेक्टर कैन डेवलप मशीन्स ऑल्सो। लास्ट पॉइंट कह रहा है इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी देश हथियार खरीदे ना खरीदे, लेकिन अगर उसके यहाँ अनाज नहीं है तो वो खाना ज़रूर खरीदेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा मदद आती है। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। जब 1947 में पार्टीशन हुआ था तो इंडिया का 3/4 लैंड एरिया जो जूट प्रोडक्शन का था वो बांग्लादेश में चला गया था। उसके बावजूद जो है इंडिया में अभी भी जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और जूट जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग के लिए। खैर, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी क्या है। 6 पॉइंट के थ्रू हम समझ सकते हैं और इसके बाद हम पढ़ते हैं डिटेल में। पहला पॉइंट कह रहा है इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज। ऑलमोस्ट मोर देन 50% पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन इंडिया एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ टोटल जीडीपी। जितनी भारत की जीडीपी है उसका लगभग 16% एग्रीकल्चर से आ रहा है। अब मोदी जी बोले थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होएगी, तो 5 ट्रिलियन का 16% आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा। 5 ट्रिलियन का 16%, उतना हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर से आएगा। एंड 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, जितना भी बाहर भेजा जाता है, जितनी भी वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं और इनकम होती है चीज़ें बाहर भेजकर, उसका 10% एग्रीकल्चर से आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो दैट्स द रीज़न इंडिया सिक्योर्ड 2nd पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ फार्म आउटपुट।
और यही रीज़न है कि भारत जो है सेकंड पोजीशन पर है फार्म आउटपुट यानी कृषि से मिलने वाले उत्पादों को बाहर भेजने में। अबाउट 75% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज। 75% आबादी भारत की अभी भी ग्रामीण एरियाज में रह रही है एंड स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। अबाउट 43% ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। भारत का टोटल 32,86,263 किलोमीटर स्क्वायर, इसका 43% जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी 17 से 19% पर जंगल हैं एंड कुछ जो है रेगिस्तानी इलाका है और कुछ रिवराइन एरिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पर, एनालाइज कर लीजिए। पहला है टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का 328 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया, जिसमें से है हमारा अभी हमने देखा 43%, 142 मिलियन हेक्टेयर्स। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, वह एरिया जिस पर फसल उगाई जाती है, 0.8 मिलियन हेक्टेयर्स। रेस्ट जो है वो प्लांट्स हैं या बाग हैं या बगीचे हैं, अगर नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में डिफरेंस दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नेट इरिगेटेड एरिया, टोटल सिंचाई वाला एरिया कितना है, 56.9 मिलियन हेक्टेयर्स, जिस पर कैनाल या अदर रिसोर्सेज के थ्रू इरिगेशन पॉसिबल है। रेस्ट पर मानसून के थ्रू। प्रोवाइड्स फूड टू मोर देन 1 बिलियन पीपल, 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को अनाज प्रोवाइड कर रहा है, जितना भारत में कल्टिवेबल या नेचुरल एरिया है वो। इसके बाद प्रोड्यूसेस 51 मेजर क्रॉप्स, लगभग 51 महत्वपूर्ण फसलें इससे प्रोड्यूस हो रही हैं। लास्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूट टू 1/6 ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग, जितना भी एक्सपोर्ट बाहर भेजकर चीज़ों को अर्निंग हो रही है उसका 1/6 जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ही बाहर भेजकर हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया इन वर्ल्ड ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भारत का क्या स्थान है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, काजू नट, कोकोनट्स, टी, जिंजर, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, इन सब में भारत जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड कह रहा है लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन 281 मिलियन। लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन यानी जो पालतू पशुओं की सबसे ज़्यादा आबादी है वो भारत में है। थर्ड पॉइंट कह रहा है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड ग्राउंड नट एंड पल्सेस। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है व्हीट राइस, हमें पता है राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है, व्हीट का भी है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू, तंबाकू का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एंड लास्ट वन सेज थर्ड लार्जेस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनाइजेशन, तीसरा सबसे बड़ा देश है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण। कृषि का जितना भी कार्य होता है उसमें मशीनों के प्रयोग में भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट, अब हमने जो आपको बताया था जीडीपी डिक्लाइन फ्रॉम 1951 कॉन्टिन्यूसली, वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर शेयर जो है जीडीपी में हम देख सकते हैं ऑन वर्टिकल कॉलम वी आर सीइंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड एट हॉरिजॉन्टल बार एक्स एक्सेस वी आर सीइंग द ईयर्स। तो यहाँ पर जो लाइंस हैं हमारी ब्लू, येलो एंड ग्रीन, आप देख सकते हैं येलो लाइन जो है वो टर्सरी सेक्टर या सर्विसेज की है। टर्सरी सेक्टर को सर्विस और या कम्युनिकेशन सेक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर येलो लाइन जो आपको दिख रही है वो 30 से 59% पे पहुँच गई है, और जो ब्लू लाइन है इंडस्ट्री की वो मेंटेन किए हुए है 17 से 27% तक, यानी कि इसमें ग्रोथ हुई है पर बहुत ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में, वो मोर देन 50 से डिक्लाइन होकर आ गया है 14% पर। ये हमारा एग्रीकल्चर शेयर है जो 51 से 2010 तक डिक्लाइन हुआ है कॉन्टिन्यूसली। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन हम लोगों के पास इतना ज़्यादा है कि हम लोगों का बफर स्टॉक हमेशा जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही रहता है, लेकिन फिर भी इसमें पैसा नहीं आ रहा है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, और यही रीज़न है कि लोग अब प्राइमरी सेक्टर में एंगेज होना भी नहीं चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू एंगेज इन मोस्टली टर्सरी सेक्टर एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ। नेक्स्ट वाज सम फिगर्स लाइक 1950 एंड 51 एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो सेक्टर था उससे जीडीपी हमें कितना मिल रहा था 55.9।
लेकिन इंडस्ट्री से 14 मिल रहा था और सर्विसेज से 29 मिल रहा था। और ये हमारा अगले 50 से 60 साल में 2007-8 आते आते 55 से हम देख सकते हैं डिक्लाइन कहाँ हो गया है एग्रीकल्चर, 55.9 से ये डिक्लाइन होकर आ गया है 19.4 पर। यानी कि हम देख सकते हैं ये लगभग 1/3 रह गया है। और इंडस्ट्रियल जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो 14 से राइज होकर 24 हो गया है, यानी कि ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जबकि सर्विस सेक्टर हम देख रहे हैं ये 29 से 55, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पर हम अगर डिफरेंस देखते हैं, सर्विस सेक्टर जो है वो 29 से 55 पहुंच गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 24 बढ़ा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग एग्रीकल्चर से अब कट रहे हैं और एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हम कंपेयर करें यूएसए और इंडिया को, तो यूएसए में एग्रीकल्चर में इंगेज पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पर मोस्टली लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में इंगेज हैं। जबकि इंडिया में इंगेज पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर उस हिसाब से बहुत कम है। और यही कारण है भारत के पिछड़े होने का। जो विकसित देश हैं वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में इंगेज लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में इंगेज लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हम लोगों ने हेडिंग में देखा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट हमें पढ़ना था। तो एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या था कंट्रीब्यूशन, वो हम देख चुके हैं। लगातार कम हो रहा है, पर फिर भी ये ज़रूरी है देश को आगे ले जाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इवन इन 2004-5 मोर देन 56% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लिवलीहुड। 1950-51 में ये 70% के आसपास थी और 2004-5 में ये 56% है। अब यहाँ से ये आंकड़ा देखिएगा, जो अभी हमने आपको पिछली टेबल दिखाई थी उसमें 50-51 में जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो, और 2010 में जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो, दोनों में 1/3 का अंतर था। यानी कि वहाँ पर अगर 9 हो रही थी तो 2010 में 3 हो गई थी। जबकि जो पॉपुलेशन इंगेज है वो ऑलमोस्ट सेम बना हुआ है, 60% की रेंज में बना हुआ है। यानी कि पॉपुलेशन उतनी इंगेज है, लेकिन उसका प्रोडक्शन अगर देखें पॉपुलेशन वाइज तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट बिकम्स एविडेंट फ्रॉम दिस फैक्ट दैट अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कुड नॉट जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन है हमारी वो प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज रह गई। 1951 में जितनी थी लगभग 2010 तक भी उतनी ही है। तो ऐसा क्यों? इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, जो स्किल्ड लेबर था वो हम नहीं जनरेट कर पाए, जिसकी वजह से जो लोग थे वो एडिक्वेट जॉब या सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। या इसका ये कारण भी हो सकता है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को हम इतना नहीं ग्रो कर पाए कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब जनरेट हो कि प्राइमरी सेक्टर से लोग हम, दोनों तरफ से ये चीज़ें हैं और इसके लिए सरकार को देखना होगा कि क्या करना है, स्पेशली हमारी निर्मला ताई को। नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1973, ज़्यादा पहले नहीं जाएंगे हम लोग, 1973 से ही देखते हैं। 1973 में जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, लगभग 75% है, और सेकेंडरी सेक्टर का 10% है और टर्सरी सेक्टर का 15% है। जबकि हम इंगेजिंग पॉपुलेशन अगर देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेबर देखते हैं, तो वो 2000 में, यानी कि 25 साल 28 साल 27 साल बाद भी सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 10 से 18% हो गया है, टर्सरी सेक्टर 15 से 22% हो गया है। यानी कि जॉब जनरेशन आप देख सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर में 7% बढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर में 8% बढ़ा है। जबकि प्राइमरी सेक्टर में एज इट इज़ मेंटेन है, वो 75 से 60 पर आ गए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 15% का डिक्लाइन दिख रहा होगा, लेकिन 27 साल में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज या नंबर वाइज तो ये आंकड़ा ज़्यादा ही हुआ होगा। यानी कि 1973 में पॉपुलेशन होगी लगभग 80, उसका 75% आप देख सकते हैं कि कितना होगा, 60 करोड़ के आसपास लोग 1973 में काम कर रहे हैं, और 2000 में पॉपुलेशन है आपकी 1 अरब, उसका 60% आप देख रहे हैं कि 60 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। तो नंबर वाइज अगर आप देखेंगे तो बढ़ा ही है, ठीक है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारे पास जॉब क्रिएशन ही नहीं है इतनी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कि हम प्राइमरी सेक्टर से लोगों को बाहर निकाल सकें। खैर, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजन फॉर फूड ग्रेन। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ऑलमोस्ट द एंटायर फूड नीड्स ऑफ द पीपल। ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि सरकारी लाइन है ये। भारत में एग्रीकल्चर द्वारा इतना कृषि उत्पादन कर लिया जा रहा है कि लगभग सभी की भूख की ज़रूरत, सभी की खाने की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसके बावजूद यूनिसेफ बोला है
यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हर साल 15 साल से छोटे लगभग 8.5 बच्चे जो है 8.5 लाख बच्चे जो है वो भूख से मर जाते हैं, अंडर नरिश्ड हैं। लेकिन चलो, सेकेंड पॉइंट कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 51 मिलियन टन्स इन 1950-51 टू 208.3 मिलियन टन्स इन 2005-6। जो पॉपुलेशन है वो नहीं बताई जा रही है यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है जो फूड ग्रेन्स थे हमारे इंडिया के वो इंक्रीज़ हुए हैं। 51 मिलियन टन था 1950-51 में और ये 4 गुना यानी 400% की वृद्धि देखने को मिल रही है, 4 गुना से ज़्यादा हो गया है 2005-6 में। लेकिन पॉपुलेशन नहीं बताई जाएगी कि 36 करोड़ से 1 अरब 36 करोड़ हो गई है, ठीक है। 5 टाइम्स पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है वो नहीं बताई जा रही है, 4 टाइम्स जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया है वो बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो अंडर नरिश होना कोई बड़ी बात नहीं है भारत जैसे देश में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस हैज़ इनेबल्ड द कंट्री टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फूड ग्रेन शॉर्टेजेस। जो खाद्यान्न की समस्याएं थीं वो लगभग कुछ हद तक या ऑलमोस्ट समाप्त कर ली गई हैं, उनसे पार पा लिया गया है। ओवरकम का मतलब है छुटकारा पा लेना। द कंट्री ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स एंड नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। बातें हैं सब। कंट्री जो है ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो गई है फूड ग्रेन्स में, नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। और अब हमें बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ता है। खैर, अभी दालें महंगी हुई थी 5 साल पहले, प्याज महंगा हुआ था, सब बाहर से ही आया था। लेकिन ये लाइनें NCERT की हैं बेटा, तो आपको पेपर में यही लिखना है क्योंकि नंबर इसी से मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर से और सेकेंडरी सेक्टर किस तरह से प्राइमरी सेक्टर से इंटर रिलेटेड है 2 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट कह रहा है मैनी इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा दे ऑल गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। कॉटन इंडस्ट्री हमें पता है सबसे ज़्यादा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है, महाराष्ट्र और गुजरात में। यहाँ पर टेक्सटाइल हब है हमारा, जिसको कंपेयर करते हैं हम जापान के ओसाका से। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स जो हैं वो हमारी हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी में, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा यूपी से होता है, ठीक है, शुगर का। इसके बाद है जूट इंडस्ट्री, ये आता है ईस्ट में। जूट इंडस्ट्री ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं पर होता है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पर हैं। सबसे पहली जूट मिल जो है 1854 में खोली गई थी। खैर ये हिस्ट्री का पार्ट था। डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। और ये सभी इंडस्ट्रीज़ टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर अपने रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट के लिए, और एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट है मानसून पर। भगवान भरोसे चल रही है कृषि। नेक्स्ट है मोर ओवर वर्कर्स इंगेज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। इसके अलावा वर्कर्स जो इंगेज रहते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, उनको खाना कहाँ से मिलेगा वो भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने खेत कभी नहीं देखे हैं या जिन्होंने फार्म नहीं देखे हैं कभी, उनको भी खाना खेतों से ही मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देख लीजिए बेटा। टॉप 10 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स 2008 काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। हम लोग एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजते हैं एशियान, चाइना, एशिया के देशों को, चाइना को, यूरोप को, सऊदी अरेबिया, UAE एंड USA। क्या भेजते हैं सबसे ज़्यादा बाहर वो भी देख लेते हैं। कैस्ट्रोल ऑयल, कॉफ़ी, वीट, टी, कॉटन, फ्रोज़न बीफ, ये सब आपको यहाँ पर परसेंटेज दिख रहे होंगे बेटा कलर वाइज। और सबसे ज़्यादा हम बाहर भेजते हैं मिल्ड राइस, चावल, इसके बाद सोयाबीन मील और नेक्स्ट काजू नट। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा हम बाहर भेजते हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर भेजते हैं उनमें फ्रोज़न बीफ, कॉटन, चाय, वीट, टी, कॉफ़ी, कैस्ट्रोल ऑयल एट्सेट्रा। इंपोर्ट क्या क्या करते हैं ये भी देख लीजिए। एग्रीकल्चरल है इसलिए यहाँ पर मिनरल ऑयल और सोना चांदी नहीं बताया है बेटा, वरना वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीज़ों में। तो एग्रीकल्चर में क्या है वही देखते हैं अभी। इम्पोर्टेड फ्रॉम, और जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एशियान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, यूरोप और USA, इनसे हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। और इंपोर्ट क्या करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं रॉ केन शुगर, नेक्स्ट रॉ सिल्क, ड्राइड पीस। रॉ सिल्क हमें पता है चाइना से लिया जाता है, ठीक है, रेशम के लिए वाराणसी में या और जगह पर
चाइना से रॉ मटेरियल मंगाया जा रहा है। अभी हाल ही में देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और चाइना बाइकआउट शुरू हुआ है, तो एक न्यूज़ भी आई थी कि बनारस के जितने भी कपड़ा व्यापारी थे उन्होंने चाइना से रेशम का रॉ मटेरियल मंगाना बंद कर दिया है। तो इससे आपको याद रहेगा कि रॉ सिल्क जो है वो हम लोग चाइना से ले रहे थे। इसके अलावा ड्राइड पीस हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन भी चाइना हो गया और जापान हो गया। इंडिया में कॉटन का बहुत बड़ा हब है, लेकिन फिर भी हम लोग रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं? चाइना से। नेक्स्ट आता है काजू नट्स, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट्स एट्सेट्रा। सबसे ज़्यादा पाम ऑयल है जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं। तो ये था आपका इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट जो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं दूसरे देशों से। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है 2008 में $7.7 बिलियन था और टोटल इंपोर्ट जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो $5.2 बिलियन का था। यानी कि जो हम ये डिफरेंस देख रहे हैं ना बेटा, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रेड डिफिसिट। ये एक नया पॉइंट है, देख लीजिए। $7.7 बिलियन हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। 7.7 बिलियन इसको ट्रेड सरप्लस कहेंगे बेटा। जो 7.7 बिलियन है ये हम बाहर भेज रहे हैं और इंपोर्ट यानी कि ये हम बाहर से मंगा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जब ऐसा कभी होता है कि हम चीज़ें बाहर ज़्यादा भेजते हैं और मंगाते कम हैं तो हमें व्यापार में फ़ायदा होता है और उससे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। लेकिन जब इसका उल्टा होता है कि हम बाहर भेजते कम हैं और मंगाते ज़्यादा हैं तो इसे ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बढ़ाने में भी मदद करता है थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ लाइक टी, कॉटन, कॉफ़ी, जूट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, शुगर ऑयल एट्सेट्रा। इन द पास्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अकाउंटेड फॉर अबाउट 70% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सिग्निफिकेंस फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को जोड़ता है। जब एग्रीकल्चरल फार्म से कोई प्रोडक्ट तैयार होता है तो वो एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर के लिए जाता है और उसे ले कौन जाता है? ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक्स हैं, लॉरी हो गई एट्सेट्रा। और जब वही रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है थ्रू वैल्यू एडिशन प्रोसेस तो वो वापस मार्केट आता है इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की मदद से। तो इस तरह से जो टर्सरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसको भी काम मिलता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा फिनिश गुड बनेंगे, उतना ही ज़्यादा टर्सरी सेक्टर यानी ट्रांसपोर्टेशन वर्क होगा, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगी टर्सरी सेक्टर में भी। Various means of transport like roadways and railways get bulk of their business from the movement of agriculture commodities and raw materials। सबको पता है सबसे ज़्यादा जो सामान है वो मरीन ट्रांसपोर्ट, जो वाटर ट्रांसपोर्ट, मरीन ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में मरीन ट्रांसपोर्ट सेक्शन आता है, उससे यानी समुद्र के रास्ते भेजा जाता है। और ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो सामान है बल्क में वो ट्रेन या रेलवे से भेजा जाता है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट तो है ही, जिन इलाकों में ट्रेन नहीं पहुंच पाती है वहां पर सामान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा कह रहा है कंक्लूजन ऑन ओवरऑल व्यूज। अगर हम पूरा देखें सब कुछ मिला के तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन बेनिफिटेड बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भारत को कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर, जब हमने आपको बताया था, जब कभी भी रिसेशन आता है या दिक्कत होती है, जैसे 1914 के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद ट्रेड्स अचानक से जो है डाउन हो गया था, मांग अचानक से ख़त्म हो गई थी, तो लोगों के पास ऐसा नहीं था कि खाने के लिए ना हो। लोगों की नौकरियां जा रही थी लेकिन इतना ज़्यादा अनाज का उत्पादन हो गया था कि खाने की कमी नहीं हो रही थी। तो कभी भी कोई भी दिक्कत आती है सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर उसे संभाल लेता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है दो द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फ्यूचर हमने अभी आपको बताया था, अगर डेवलप कंट्री बनना है तो हमें पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करनी होगी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। तो फ्यूचर तो इंडिया का यही है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर में इंगेज करना है, बढ़ना है आगे। लेकिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर वुड ऑलवेज प्रूव टू बी वाइटल फॉर मेकिंग इंडिया अ पावरफुल एंड स्टेबल इकोनॉमी इन द फ्यूचर। जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो बताएगा कि हम फ्यूचर में कितने ताकतवर और स्टेबल इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेटा आपका डिटेल एनालिसिस चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का। इसके बाद एक वीडियो और रह जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम लोग सारी मेजर क्रॉप्स और उनके लिए एडिक्वेट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।